Namaste, Riju. नमस्ते Thank you दादा। for thank you for inviting me for this conversation on diet principles and Gita. गीता से हम लोग हमारे आहार के बारे में किस प्रकार का मार्गदर्शन ले सकते हैं, उस पर चिंतन करेंगे। यही पूछना है बिल्कुल, ना? बिल्कुल दादा, यस। देखो, गीता के बारे में पहले हम लोग जानते हैं थोड़ा। So I'll give you a very brief background on what Gita is, the way I understand it, the way I have been given to understand it. क्योंकि I'm not a scholar. Whatever I learn from various sources, I try to experiment with them. I try to implement those principles in my life to see how they work. Because my academic training has been in science and engineering. More specifically, I have studied chemical engineering, chemistry, then environmental science, environmental engineering. So all of those things sort of come naturally to me. And then after having done a PhD, you learn analytical skills. So whatever you see in front of you, you don't really take it on face value. You always try to analyze it. So when we do that, then we actually experience some of these things from within rather than simply reading some books and then believing what is written in the book. Okay. I've been interested in diet and how it affects us since my childhood, I think. I've done all kinds of experiments since my college days, many experiments, and I've tried to learn from those. So even when I was a child, my father tells me, this is before I have any memory of my childhood. This must have been a few months old or less than a year old. He says that I was always constipated. I was a constipated baby. So I would not be able to throw the junk out from my body very easily. Okay. Now this problem gets exacerbated when you have a job like mine. Okay. तो जिस आदमी को दिमाग का काम करना होता है ना, हम्म। या जिसकी टेंडेंसी वैसी है, सो whatever we learn, we try to analyze it and we try to learn between the lines or read between the lines and try to learn the underlying principles. हम्म। तो उस प्रकार का काम जो आदमी करेगा, उसका क्या होगा मुझे बताओ। देखो, हम्म। any and all activities we do in our life or during the day, all of those activities require energy. या। So if our brain is pulling energy out of the system, then our digestive system doesn't get as much energy as it needs. To digest the food, it needs to digest. When we have such a profession, then it is best for us to eat something very easy to digest and not unnecessarily burden our digestive system. ये तो कॉमन सेंस है, ठीक है ना? ट्रू। उसको अगर हमने बर्डन किया फॉर एनी रीजन बाय एनी काइंड ऑफ फूड, then it will not be digested properly and elimination will not be efficient. So ये मेरी पर्सनल कहानी है, ठीक है? बाद में आई स्टडीड केमिकल इंजीनियरिंग एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। तो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में क्या होता है कि यू लर्न अबाउट process efficiencies and minimization of waste and waste reutilization, waste disposal, all kinds of things you learn as a part of your academic study. तो इन सब का अभ्यास अध्ययन करते करते मुझे ये पता चला कि प्रकृति में इनएफिशिएंसी नाम की चीज है ही नहीं। नेचर हैज जीरो इनएफिशिएंसी। नेचर इज सुप्रीमली एफिशिएंट। In nature, every process is as efficient as it can be. That is how nature is designed. In fact, that is how engineers learn and try to design systems based on natural phenomena. All of our technology is based on principles of nature.
we have studied the principles of nature and we have tried to utilize that understanding, that knowledge, those principles to design systems that take advantage of those principles. Simple example would be an aeroplane. So aeroplane flies based on the principles of gravity, aerodynamics, buoyancy, all kinds of things. Correct? I'm not an aerospace engineer, so I don't know how to design an aeroplane, but I know at least this much, that you would not be able to design an aeroplane unless you understood the principles of physics, aerodynamics, gravity, things like that. Okay. So one thing is certain. In nature, there is no such thing as inefficiency. I'll give you one other example. You must have seen videos on Discovery Channel or National Geographic, Yeah. or Animal Planet. In Africa, there is a bunch of deer running and a tiger is chasing them. The chase happens for 2-3 minutes and then at the end, one of the deer gets caught. So which deer gets caught? The deer that's the least efficient in the whole bunch. Right. So from that particular deer's point of view, the outcome is disastrous. क्योंकि उसकी तो बेचारे की जान चली गई. लेकिन look at it from the ecosystem point of view. What the ecosystem has done is it has culled the inefficient specimen. मतलब जो सबसे वीक लिंक थी उस स्पीशीज की, उसको उसने हटा दिया और जो एफिशिएंट स्पेसिमेंस थे उसको प्रमोट किया. उससे क्या होगा कि द प्रोजेनी विल बी मोर एफिशिएंट देन द करंट बंच. ऐसा होगा. This is exactly what happens in nature. So nature is neutral. It doesn't really care whether this particular specimen goes forward or that specimen goes forward. It doesn't really care. Nature will promote efficiency and it will eliminate inefficiency. This is a principle. उसको कुछ नहीं किया जा सकता. जो है वो जो है सो है. तो उससे सीखो. Superb example, दादा. है ना? Very अभी impactful. ये नेचर में हो गया. नाउ यू लुक एट योर ओन कंपनी या योर ओन स्कूल. और स्कूल में जो बच्चा फेल हो रहा है उसको फिर पिछले क्लास में फिर से भेज देते हैं. उसको बोलते हैं कि भैया तेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है, तेरे बस की बात नहीं, इसको फिर से सीख और फिर आगे जा. तो नाउ इट इज अप टू अस. ओके, इफ आई एम दैट स्पेसिमेन, इट इज अप टू मी वेदर आई शुड कम फर्स्ट इन क्लास और लास्ट इन क्लास. ये तो हम कर सकते हैं ना. हमारे कंपनी में भी ऐसे ही होता है कि हर साल हमारा रिव्यू होता है. कोई हमारा बॉस जो होता है वो रिव्यू करता है कि तुमने जो जो करना चाहिए था वो किया कि नहीं, बराबर किया कि नहीं, एफिशिएंटली किया कि नहीं. नहीं किया होगा तो फिर इसी ग्रेड में रहो, प्रमोशन नहीं होगा तुम्हारा. सो दिस प्रमोशन मॉडल imitates nature. It should imitate nature, and wherever the model is designed in such a way that even if you don't deserve, you will be promoted, then that system is going to collapse at some point. Right. So this is something we all need to think about when we design social systems, political systems, managerial systems in this manner. So that's a disaster for, I mean, recipe for disaster, not a disaster for the whole society. किसी समाज को अगर नष्ट करना होगा तो उसमें इस प्रकार का सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दो कि जो इनएफिशिएंट होगा, जो इनकेपेबल होगा, उसको आगे बढ़ाओ. तो फिर तो समाज नष्ट हो ही जाएगा ना. तो ऐसा नहीं हो सकता है. ये दिस कैन नॉट लास्ट फॉर एवर. एंड यू सी, हमारा जो अभी का सिस्टम है, सोशल सिस्टम, वो भी तो एक एक्सपेरिमेंट ही है. दैट इज ऑल्सो एन एक्सपेरिमेंट इन ह्यूमन हिस्ट्री. The way we are running our own affairs right now, this is all connected, by the way. So I have no hesitation in pointing out our drawbacks or criticize our drawbacks and try to learn from those so that we can improve those. Yeah. And this is collective. Is all collective. तो हमें सबने इस पर सोचना चाहिए और हमारे मन से इस प्रकार का
जो माइंडसेट है उसको निकाल देना चाहिए। क्योंकि देखो, एट द डीपेस्ट लेवल ये जो डिफरेंशिएशन है या डिफरेंसेस हैं, ये जिस प्रकार से हम समझते हैं और जिस प्रकार से हम उनको उपयोग में लाते हैं, इफ इट इज नॉट in according in accordance to nature's laws, it is bound to fail. Okay, so enough commentary on social structure. Let's stick to our गीता एंड डाइटरी प्रिंसिपल्स। क्या होता है एक कि नेचर का जो प्रिंसिपल है ना, उसमें इनएफिशिएंसी जो होती है, इट इज नॉट लुक टू वेरी काइंडली अपॉन। नेचर विल से कि भैया अगर तेरे से नहीं होता है तो फिर तो पीछे के क्लास में चला जा, ठीक है ना। तो क्या होता है कि इफ वी डोंट रन आवर ओन सिस्टम, यानी लुक एट द ह्यूमन बॉडी एज ए सिस्टम, उसको अगर एफिशिएंटली चलाया नहीं जा रहा है, सो नेचर बेस्ड ऑन नेचुरल लॉ इज गोइंग टू स्टार्ट एलिमिनेटिंग इट। तो उससे क्या होता है कि अगर हम लोगों ने प्रकृति के नियमों का पालन नहीं किया, तो हमें ऐसा अनुभव आता है कि जो हमें बताता है कि कुछ करो। तो जैसे हमने अगर हमको खाना अच्छा लगता है इसलिए हमने बहुत खा लिया, तो हमारा पेट भर जाएगा, और अगर वो अन्न ठीक से नहीं पचा तो हमें अपचन हो जाएगा। अपच कहते हैं हमारा हिंदी में, शायद उसको अपच हो जाएगा, राइट। सो इट्स इनडाइजेशन। इनडाइजेशन का जो साइड इफेक्ट है, तो उसमें कभी कभी सर दुखता है, या फिर यू हैव लूज मोशंस और गैसेस और व्हाट हैव यू, राइट। ऐसा अगर हो रहा है, so it's not a pleasant experience. So if you राइट are not having a pleasant experience, then you try to analyze why you are having that unpleasant experience. If you don't know the principles of what to eat, how much to eat, when to eat, then you learn from those who have understood those. अगर हमको कुछ आता नहीं है तो किसी से सीखने में क्या बुराई है, सीखो। There is no shame in learning from somebody if you don't know. First of राइट all, one should have the humility to accept कि मुझे ये नहीं आता है। तो नहीं आता है या नहीं पता है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप इन ट्राइंग टू लर्न, यही है प्रोग्रेस। अगर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सब कुछ पता है तो फिर प्रोग्रेस नहीं हो सकता है। बिल्कुल तो दीज आर द सिग्नल्स। सो आई विल गिव यू एन एग्जांपल। अगर हम लोग गाड़ी चला रहे हैं और हमने रेड सिग्नल क्रॉस किया, ठीक है, और पुलिस ने हमको रोका, और पुलिस ने हमसे कहा कि अभी इसका दंड देना पड़ेगा, हियर इज द टिकट, हियर इज द फाइन, भरो पैसा। हम उससे अगर कहते हैं पुलिस से कि देखिए, ये रेड लाइट पार करना जुर्म है, ये मुझे पता नहीं था, यहाँ पे कोई ट्रैफिक मुझे कोई दिखा नहीं, आई जस्ट वेंट अहेड। सो देन द पुलिसमैन विल से कि तुम्हें अगर पता नहीं है फिर भी फाइन तो भरना ही पड़ेगा। यानी इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज टू एस्केप फ्रॉम द लॉ। राइट समझ में आ गया? सो दिस इज द प्रिंसिपल। तो या इफ आई डोंट अंडरस्टैंड द लॉज ऑफ नेचर, and if I break those, and if I face the consequences, I cannot plead ignorance. Nature will not forgive me. अगर मैंने बहुत ज़्यादा खा लिया तो मुझे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो होगा ही होगा। बिल्कुल तो ये हमें जो अनुभव होता है, ये हमें दंड देने के लिए नहीं होता है, ये हमें कुछ सिखाने के लिए होता है। तो हमारे जीवन में जब समस्याएं आती हैं या हमारे जीवन में जब दुख आता है, तो कई लोग भगवान को कोसते हैं कि भगवान, मेरे जीवन में ऐसी समस्या तुमने क्यों भेजी है? हाँ? तो भगवान ने तुम्हें दंड देने के लिए नहीं भेजी है समस्या। गॉड डजंट हेट यू, गॉड डजंट, मतलब ये मैं कहानी बता रहा हूँ। यू डोंट हैव टू बिलीव एनी ऑफ दिस। आई एम जस्ट मेकिंग ए स्टोरी अप टू एक्सप्लेन टू यू द प्रिंसिपल्स। राइट क्योंकि कोई चैलेंज कर लेगा हमको कि वेयर इज गॉड, हु इज गॉड। गॉड डजंट गेट इन्वॉल्व इन योर डे टू डे अफेयर्स, ऐसा थोड़ी होता है। गॉड तो है ही नहीं, यहाँ से चालू हो जाएंगे लोग। हाँ, तो हाँ वेदर गॉड इज और गॉड इज नॉट इज ए कंप्लीटली डिफरेंट डिस्कशन, छोड़ दो उसको।
हाँ. Let's just say nature's laws. Okay, Yeah. nature's Hmm. laws are universal. They are not Correct. dependent upon whether there is God or not, or which God you believe or which God you don't believe. So Correct. if you flout nature's laws, then you will face the consequences. ये तो प्रिंसिपल समझ में आ गया आपने को? Yeah. Yeah. तो उसमें से And अगर हम लोग also, सीखेंगे, हाँ बताइए। the awareness part. हाँ, Not being aware is also one's responsibility only. एब्सोल्युटली। तो ये तो अगर हमने वो पुलिस को बताया कि ये मुझे पता नहीं था, तो पुलिस कहेगा कि एक काम करो, तुम्हारा ड्राइविंग लाइसेंस मेरे पास दे दो, मैं इसको रख लेता हूँ, तुम एक महीना भर पैदल चलो और ड्राइविंग Hmm. के सारे जो नियम है उसको पढ़ो, उसको समझो, और फिर एक महीने के बाद ये ले जाओ, फिर गाड़ी चलाओ। Right. सो इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज व्हेन यू ब्रेक द लॉ एंड व्हेन यू Hmm. गेट पनिश्ड। ठीक है ना? Right. तो ये समझ में आ गया अपने को। Hmm. तो अगर आहार के जो नियम हैं या जीवन के जो नियम हैं वो हमें पता नहीं है, तो इसके लिए दोषी हम हैं। तो अगर हमें पता नहीं है, तो पहले क्या होता था कि ये ट्रेडिशनल विजडम वाज हैंडेड डाउन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। अभी क्या हो Correct. गया है, इन द लास्ट से 50 years और सो, जो थोड़ी ये न्यूक्लियर फैमिलीज वगैरह हो चुकी हैं, तो उसमें Hmm. जो ट्रेडिशनल हमारे यहाँ होते थे, ग्रैंड मदर, ग्रैंडफादर, कभी कभी तो ग्रेट ग्रैंड मदर, ग्रेट ग्रैंडफादर, ये भी लोग होते थे हमारे जीवन में, तो वो आजकल Hmm. नहीं रहे। Right. एंड फॉर आवर वर्क वी हैव बीन ट्रैवलिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये सारा जो ट्रेडिशनल विजडम है वो हमें फैमिली के थ्रू हैंड डाउन नहीं हो रहा है। Okay, तो Right. अभी इसके लिए फिर द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव एवरीबडी नोज इज आइदर गूगल और विकीपीडिया। अच्छा, Hmm. उसमें से सारा का सारा इंफॉर्मेशन ठीक आएगा या नहीं आएगा, कोई इसकी गारंटी कोई नहीं है. गारंटी नहीं है। Hmm. इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो उसमें क्या होता है, देखो आज की तारीख में मुझे अगर कुछ ज्ञान मिलता है कहीं से, तो अनलेस आई एक्सपीरियंस इट फ्रॉम विद इन, आई कैनॉट बिलीव इट, और आई डोंट वांट टू बिलीव इट। Hmm. अच्छा, हमारे यहाँ देखो, व्हाट आई ऑलवेज टेल ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स, और बहुत बार मैं बोल चुका हूँ कि हमें सीखना किससे है और हु शुड वी लिसन टू। तो नंबर वन, जो हमें जो कुछ बता रहा है उसने उसका अनुभव किया होना चाहिए। सो इफ आई एम टेलिंग यू समथिंग, आई शुड हैव एक्सपीरियंस्ड इट माई सेल्फ, दैट इज नंबर वन चेक मार्क। ठीक है? Hmm. Hmm. नंबर टू, आई शुड हैव योर बेनिफिट इन माई माइंड, मतलब आई शुड बी योर हित चिंतक। ये Hmm. आई शुड हैव योर हित इन माई माइंड। Hmm. ठीक है ना? ये दूसरा हो गया। और Right. तीसरा, आई शुड हैव नो वेस्टेड इंटरेस्ट। Not. आई शुड नॉट गेट समथिंग इन रिटर्न, और आई शुड नॉट वांट समथिंग इन रिटर्न। अगर Hmm. ऐसा होगा तो फिर इसके सारों के मैं एग्जांपल्स देता हूँ। तो पहला एग्जांपल ये है कि हमारे कॉलेज में जो प्रोफेसर होता है ना, या लेक्चरर, वो Hmm. पुस्तक पढ़ के आता है और अपने को सिखा देता है वो। ठीक है? Hmm. उसने वो एक्सपेरिमेंट किया होता है या नहीं होता है, या उसने उसके ऊपर चिंतन किया होता है या नहीं होता है, ये हमें पता नहीं होता है। लेकिन जिसने किया नहीं होता है, उसके टीचिंग स्टाइल से अपने को पता चल जाता है कि भैया ये सिर्फ नोट्स पढ़ के सुना रहा है, इसको ये पता कुछ नहीं है। तो फिर Hmm. ऐसे लेक्चरर का लेक्चर बंक करके हम लोग मूवी देखने को जाते थे व्हेन आई वाज इन कॉलेज। Right. ठीक है? Yes. पहला एग्जाम्पल हो गया कि जो पढ़ा रहे हो वो तुमको उसका अनुभव है कि नहीं है, और उसका कितना अंडरस्टैंडिंग तुम्हारा है, तब जाकर के Hmm. पढ़ो। दैट इज नंबर वन। दूसरा एग्जाम्पल ये है, ये मेरे बारे में भी हो सकता है। सो इफ आई एम टीचिंग समथिंग, और इफ आई एम ट्राइंग टू टीच समथिंग अबाउट विच आई हैव नो एक्सपीरियंस, किड्स विल रन अवे, ऑब्वियसली। Hmm. ठीक है? Yeah. सेकेंडली, हित की चिंता होनी चाहिए। तो उसका जो एग्जाम्पल है वो है हमारे पेरेंट्स, या इवन यू एज ए पेरेंट विल आइडेंटिफाई विद दिस। हमारे बच्चे कई बार जिद कर लेते हैं ना कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। सो आउट ऑफ Hmm. द 10 थिंग्स दे डिमांड, वी ओनली गिव देम 5 और इवन फ्यूअर। Hmm. क्यों? क्योंकि द थिंग्स दैट वी डिनाई देम, दे आर नॉट गुड फॉर देम, विच वी नो बट दे डोंट नो। Right. राइट? तो उनके हित की चिंता हमें है ना, इसलिए तो हम उनको डिनाई कर रहे हैं। बिल्कुल. तो उनको बेचारों को पता नहीं होता है। तो स्पेशली टीनेजर्स, दे विल स्टार्ट थिंकिंग दैट आवर पेरेंट्स आर आवर एनिमीज। वैसा नहीं होता है। Hmm. सो तो ये जो एक पेरेंट्स का और उनके बच्चों का जो एक रिलेशनशिप होता है ना, वो अगर ओपन रहेगा हमेशा, एंड व्हेन इट इज बेस्ड ऑन रीजन, देन
it is easier to raise proper children, and then they would not be resenting you. ऐसा नहीं होगा. तो वो एक ओपन कम्युनिकेशन अगर होता है, तो फिर we will do the things that are good for them, that you know that may be against their wishes at a given time, but they Right. will realize over time. और बहुत बार फिर क्या होता है कि उनको बताना पड़ता है कि देखो अभी तुमको समझ में नहीं आएगा, अभी Hmm. हम लोग ये बोल रहे हैं इसलिए तुम मत करो, और फिर Hmm. बाद में जब समझ जाओगे तब फिर पता चलेगा कि यार हमको पापा ने बोला था कि ऐसा नहीं करना चाहिए, तो ये अच्छा ही था, हमारे लिए अच्छा था। ये Right. किसी समय समझ में आ जाएगा। तो हित की Right. चिंता होनी चाहिए। और Right. तीसरा जो है वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। सो इफ आई एम एडवाइजिंग माई सन और डॉटर in such a way that when they implement that advice, in return they are going to do something for me. Hmm. मतलब मेरा तो ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ये है कि हमने बच्चों को जो जन्म दिया है, ये हमारी आवश्यकता थी। बच्चों ने हाँ, थोड़ी अपने को एप्लीकेशन किया था कि हमको पैदा करो करके, बिल्कुल। है ना? सो रेजिंग ए हैविंग ए चाइल्ड एंड रेजिंग ए चाइल्ड is a part of our own spiritual growth. So once we have given the children the environment and the background and the base they need to flower, उतना ही हमारा कर्तव्य है। उसके बाद में वेदर दे विल टेक केयर ऑफ अस और नॉट, उसके बारे में हमारी अपेक्षा नहीं होनी चाहिए। आवर चिल्ड्रन आर गुड, एंड यू नो वी आर ऑल्सो रिस्पेक्टफुल ऑफ आवर पेरेंट्स विशेस, और जो राइट। वो चाहते हैं वो हम टू द एक्सटेंट वी आर एबल टू डू करते हैं, है ना? लेकिन अपेक्षा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर अपेक्षा होगी तो फिर अपेक्षा भंग हो जाएगा। ठीक है? या फिर इफ आई से कि आई एम गोइंग टू एडवाइज यू, आई tell you the truth and all that, but then in return you have to give me so many lakhs of rupees or whatever, or you have to give me that favor or this favor or that favor, so then you stay away. ऐसा होना चाहिए. So these three राइट। criteria: the person who is telling me the truth, if he has experienced it, if he has no interest of his own, and if he is interested in my well-being. ऐसा राइट। अगर आदमी मुझे मिल गया तो आंख बंद करके वो जो बोल रहा है वो सुनो और करो. अच्छा, सुनो और करो में जैसा एक जो होता है ना, कि जैसे समझ लो इफ आई कम टू योर हाउस एंड आई से कि रिजू मुझे प्यास लगी है, इफ हम्म। आई से दैट देन व्हाट विल हैपन? इफ यू से ओके दादा आपने जो बोला मैंने समझ लिया, ये तो आपको प्यास लगी है, वाज हम्म। दैट द इंटेंशन ऑफ मी सेइंग दैट सेंटेंस? द इंटेंशन वाज कि भैया उठो, अंदर जाओ, एक गिलास पानी ले आओ मेरे लिए. दैट वाज द इंटेंशन. हाँ, तो राइट। यानी मैंने सुना या फिर मैंने सुना, इसमें फर्क है ना. सी हमारा जो प्रॉब्लम है, मोस्ट ऑफ द पीपल्स प्रॉब्लम, 99% ऑफ द पीपल्स प्रॉब्लम इज कि हम लोग गीता पढ़ते हैं, हाँ, और फिर गीता के सारे श्लोक याद कर लेते हैं, और फिर एक प्रतियोगिता होती है कि भाई 700 श्लोक विदाउट एनी मिस्टेक विथ परफेक्ट प्रोनाउंसिएशन कौन गा सकता है, उसको फिर पहला प्राइज मिलेगा. इस प्रकार की प्रतियोगिता हम लोग जीत भी जाते हैं, राइट। राइट? लेकिन वो है क्या तात्पर्य? गीता पढ़ने का तात्पर्य गीता के श्लोक याद करना और संस्कृत अच्छी तरह से बोल पाना, दिस इज ए साइड बेनिफिट. हम्म। साइड बेनिफिट. हम लोग अगर गाय पालते हैं घर में, तो गाय क्यों पालते हैं? गाय तो पालते हैं कि उससे दूध मिलेगा अपने को, ठीक है ना? हम्म। और जो उसका गोबर है या गोमूत्र है वो तो आराम से मिल जाता है, अपने आप मिल जाता है, और उसका साइड बेनिफिट होता है. हम्म। लेकिन पालते तो दूध के लिए है ना. तो अगर हम लोग गीता पढ़ेंगे, गीता समझेंगे, गीता का जो अर्थ है उसको हमारे जीवन में उतारेंगे, तो वो हो गया गीता का दूध, यानी अमृत. हम्म। लेकिन हम लोग वो गीता को याद करने में और उसके ऊपर पीएचडी करने में और उसके ऊपर इनाम जीतने में लगे हुए हैं. हम्म। सो दैट इज लाइक चेसिंग द गोबर एंड द गोमूत्र. Nothing wrong with that. I mean, they have great medicinal properties, anti
क्या कहते हैं कि पेस्टिसाइडल प्रॉपर्टीज वगैरह वो सब कुछ होता है। आई एम हम्म, नॉट सेइंग दैट इट इज डिस्कार्डेबल या डिस्कार्ड करने लायक चीज नहीं है वो, लेकिन हमको गाय का दूध जो चाहिए उसके हम्म, लिए तो हम लोग उसके पीछे लगे हुए हैं ना। तो राइट। गीता अगर हम इस प्रकार से पढ़ेंगे और उसके अंदर जो तत्व है उसको हम समझेंगे और उसको हमारे जीवन में उतारेंगे, तो हमने इस गाय का दूध पिया है ये सिद्ध होगा। तो उसमें से जो मैंने सीखा है रिगार्डिंग आहार शुद्धि वो मैं बताऊंगा। तो गीता ऐसा है कि गीता इज ए 700 वर्स बुक और ट्रीटाइज हिस्ट्री which is the essence of all the Upanishads, and Upanishads are the essence of the Vedas. हमारे सारे जो वेद हैं उन वेदों में जो ज्ञान है उस ज्ञान का जो निचोड़ है वो निचोड़ है उपनिषदों में, और उन उपनिषदों का जो निचोड़ है वो है गीता में। तो हम अगर गीता को ठीक से पढ़ें और ठीक से समझें तो उसमें हमारे जीवन से जुड़ी सारी समस्याओं का समाधान और सारे प्रश्नों का भी उत्तर है। हमने किस प्रकार से जीना चाहिए, हमने किस प्रकार से जगत के साथ व्यवहार करना चाहिए, हमने किस प्रकार अन्य जीवों के साथ व्यवहार करना चाहिए। जीव यानी क्या, जगत यानी क्या, और ये जगत किस प्रकार से चलता है, किन सिद्धांतों पर चलता है, किन नियमों पर चलता है, इसका कोई नियंता है? अगर नियंता है तो उसको हमने ईश्वर बोला है। तो ये ईश्वर कौन है, इसका क्या स्वरूप है, इसके बारे में स्पष्टता है। और इसके बारे में अगर स्पष्टता हमारे जीवन में आ जाती है, हमारे मन में प्रकट हो जाती है, तो उसके बाद हमारा जीवन जो है वो उन सिद्धांतों पर अपने आप चलने लगेगा। दैट इज द ब्यूटी ऑफ गीता, इफ यू रियली अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल्स राइट। बिहाइंड द गीता। ठीक है ना। तो देखो, आई हैव बीन इन कॉर्पोरेट लाइफ मोस्ट ऑफ माई लाइफ। सो आई स्टार्टेड एज ए यंग environmental consultant in my early 30s, and by my mid 30s I was running an environmental consulting practice for TCS, the largest multinational in Bharat। हम्म, ठीक है ना। तो by that time I had reached the peak of my career as an environmental engineer in Bharat, as a professional, not हम्म, as an entrepreneur. Of course, some entrepreneurs in our field would have been making more money than I was making, but I was making more money as a salaried environmental engineer in the entire nation राइट। by the time I was about 36 or 37 years old। ठीक है ना। तो उसके बाद क्या फिर, व्हाट नेक्स्ट? तो जो हमारे मटेरियल एम्बिशंस होते हैं ना, या वर्ल्डली एम्बिशंस होते हैं, वो अगर बहुत जल्दी फुलफिल हो जाएंगे तो फिर उसके बाद एक एम्प्टीनेस आता है हमारे मन में कि इसके आगे क्या करना है अभी, हम्म, है ना। तो राइट। तब क्या हुआ कि विथ सम लक आई वाज इनवाइटेड बाय ए यूनिवर्सिटी इन अमेरिका टू कम हियर टू डू सम वेरी बेसिक फंडामेंटल रिसर्च ऑन वाटर प्यूरिफिकेशन, जो मेरा पीएचडी में स्पेशलाइजेशन था। तो वो ओके। जब मैं कर रहा था फॉर अबाउट ए ईयर एंड हाफ, तो ड्यूरिंग दैट टाइम आई वाज एबल टू डू अ लॉट मोर एक्सपेरिमेंट्स ऑन डाइट also। So this whole thing, my professional career, my personal life, and my interest in diet purification, as well as all the experiments I have done with diet purification, all of these things have gone hand in hand, which is a very interesting story in my experience। तो इनमें से मैंने जो सिद्धांत सीखे हैं, तो पहला जो मैंने सिद्धांत सीखा, जो मैंने अभी कुछ देर पहले बताया, कि नेचर इज सुप्रीमली एफिशिएंट। हम्म, तो उसमें इफ यू अप्लाई दैट प्रिंसिपल टू द process of feeding our body, how would that translate? It will translate into the amount of food we eat should be converted 100% into either energy or body tissues, and there should be zero waste। अगर राइट। ऐसा होता है प्रोसेस तो देन इट विल बी 100% एफिशिएंट। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं होता है,
ना ऐसा होना भी चाहिए, कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि क्या होता है देखो, when we consume some food or even if you don't consume any food, there will be some waste material the body will discard, क्योंकि the body runs on energy it derives from the oxidation of carbon. हमारा जो सारा शरीर है, हमारा ही नहीं, of I would say most of the organisms on this planet, other than uh, certain organisms that are purely based on the energy they derive from inorganic reactions, वो कम है. But a lot of our organisms on this planet will run on energy that is derived from oxidizing reduced carbon into oxidized carbon. So reduced carbon is essentially glucose. Glucose is a very standard molecule in all biochemistry. और Mhm. और ये ग्लूकोज जो है ये बर्न होता है टुवर्ड्स कार्बन डाइऑक्साइड. सो व्हेन ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी इज रिलीज्ड. So this reaction is common to one cell, single cell bacteria as well as to human beings. In fact, human beings are a bunch of cells, individual cells. And Mhm. in an individual cell, this reaction will happen where glucose is burned to carbon dioxide, energy that is released animates us. तो अभी मैं हम लोग जो बात कर रहे हैं उसके लिए जो ऊर्जा चाहिए, ये ऊर्जा हमने जो खाना खाया है उसका जो कन्वर्शन हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड में, कैसे हो रहा है? वो कार्बन डाइऑक्साइड सारा मेरे मुंह से बाहर निकल रहा है ना. Mhm. ओके, सो दैट बर्निंग इज हैपनिंग विद इन द बॉडी एंड एनिमेटिंग दिस पीस ऑफ अर्थ. ठीक है. Right. Right. अदरवाइज तो दिस बॉडी इज बेसिकली अ पीस ऑफ द प्लेनेट, क्योंकि सारा का सारा मटेरियल जो है हमारे शरीर में दैट इज essentially a piece of the planet, a part of the planet. उसका थोड़ा कन्वर्शन हो गया है. And all the molecules in the body used to be in the food before I converted them into the body. Before nature Mm. converted those molecules into the body, and before that, those molecules were a part of the planet, Right. which got converted into food through the process of photosynthesis. ठीक है ना. तो ये सारा जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है ये हमेशा शुरू रहता है. So even if we don't consume anything, our body will create energy out of some material stored inside the body. In the process, some material will be converted into energy and some material will be thrown out as waste, either liquid, solid or gaseous. तो वेस्ट तो थ्रो आउट हो ही रहा है ना. जैसे मैं बात कर रहा हूँ तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड इज बीइंग एक्सेल्ड एवरी ब्रेथ. बिल्कुल. सो बिल्कुल. दैट इज जनरेटिंग वेस्ट. तो वेस्ट विल बी जनरेटेड थ्रू द बॉडी. पर अगर हम लोग उस प्रोसेस को एफिशिएंट कर सकते हैं, विच मीन्स वी टेक इन एक्स अमाउंट ऑफ मटेरियल and we convert as much of it as possible into either energy or body tissues and convert as little as possible into waste. ठीक है ना. तो उसमें एग्जांपल मैं देता हूं कि जैसे हमने अगर वो कपूर होता है ना, वो जो हम जलाते हैं पूजा में, हाँ, हाँ. तो कपूर इज a solid material before we burn it, and when we burn it nothing is left over or very little is left over. There is very little ash if at all. या फिर अगर एविएशन फ्यूल में देखो, इन एविएशन फ्यूल there is mostly energy and very little ash content, right? Now, on the other end of the spectrum, you look at coal. Coal is also a fuel. So, Hmm. coal will have, especially in Bharat, the coal will have 40% ash. यानी अगर 1 किलोग्राम कोयला जलाया तो 400 ग्राम राख मिलेगी बाद में. उसका क्या करेंगे अभी? वो बड़ा एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है. तो अगर हम लोग हमारा जो अन्न खाते हैं वो इस प्रकार का हो, कापूर जैसा, कि जिसमें से ऊर्जा मिले हमें और उसमें से जो बचा है मटेरियल उससे हमारा शरीर बने, और बहुत थोड़ा मटेरियल ऐसा हो कि जो हमें फेंकना पड़े, तो दैट विल बिकम वेरी एफिशिएंट. तो आफ्टर मेनी एक्सपेरिमेंट्स लाइक दिस आई हैव कम टू द कंक्लूजन, आई हैव नॉट कम टू द कंक्लूजन बट
I have experienced the conclusion given to us in Gita or in many other scriptures कि अगर आप सात्विक अन्न का ग्रहण करते हो, सात्विक भोजन करते हो, तो शरीर में ऊर्जा रहेगी, बनी रहेगी, और जो कचरा है वो कम निकलेगा। ऐसा हमारा अनुभव है। तो उसमें जो वेरिएशंस हमने करके देखे, तो मुझे ये अनुभव आया कि इफ वी कंज्यूम food as close to nature as possible. So in nature, many things get created which are ready to consume. So which is the most attractive thing for human beings? The most attractive thing for human beings is the low hanging fruit, which is ripe on the tree, which is ready to fall. That will be the most attractive thing. जैसे अभी Right. आम का मौसम चल रहा है, तो अगर Mhm. आम का पेड़ लदा हुआ है, और इतना लदा हुआ है कि वो आम के भार के कारण ये सारी जो टहनियाँ हैं उसकी वो नीचे झुक चुकी हैं, और सारे आम पके हुए हैं, और जैसे ही मैं हाथ लगाता हूँ उस आम को, तो वो आम मेरे हाथ में आता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि द ट्री इज वांटिंग टू गिव दैट फ्रूट अवे टू यू। Mhm. द प्रिंसिपल बिहाइंड दैट, और द डिजाइन बिहाइंड दैट फ्रॉम नेचर्स पॉइंट ऑफ व्यू इज कि जो आम का पेड़ है ना, वो एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं जा सकते, लेकिन वो आम का जो फल है, वो अगर मैं खाता हूँ या कोई और प्राणी खाता है, तो फिर वो आम का पूरा घर खा लेगा, और जो उसकी गुठली है उसको कहीं फेंक देगा। तो जहाँ पर वो गुठली जाएगी वहां पर वो आम का पेड़ उग सकता है फिर से। Hmm. Right. सो दैट इज हाउ द ट्री हैज प्रोपोगेटेड इटसेल्फ। तो ये जो प्रोपोगेशन ऑफ प्लांट किंगडम है, उसके लिए कोई वेक्टर चाहिए हमारे जैसा। सो दैट इज नेचर्स डिजाइन। ओके। Hmm. Hmm. अच्छा, दूसरा क्या होता है कि व्हेन वी आर कंज्यूमिंग द लो हैंगिंग फ्रूट, then we are actually consuming the waste material produced by the plant. The plant no longer requires the fruit. In fact, the fruit is going to Rot. get given up. वो तो Hmm. ड्रॉप होने वाला है ना, तो वो तो गलने पे ही आ गया है अभी। वो तो गल Correct. जाएगा इवेंचुअली, राइट? सो Yeah. दैट इज द वेस्ट मटेरियल एज फार एज द plant is concerned. So Hmm. if we consume the waste or the product that the plant is going to discard eventually, and utilize that as food. And then what happens? Our waste becomes the food for the plant. This is how circularity is maintained. This is how nature has been maintaining its cycle for millions of years until about 200 years ago. And then chemical engineers like me created all kinds of chemicals which nature had never experienced in the past. So many of those chemicals simply became waste. So nature could never utilize them in natural cycles. Like the Before plastic. the industrial revolution, Hmm. all the products and byproducts of all natural processes would be utilized as raw materials for the downstream processes. This is how nature has functioned for millions of years until about 200 years ago. After that, that whole cycle was disturbed by people like us. Okay. Hmm. Now, people like us, environmental engineers, are trying to fix that problem. So in my life, initially I learned chemical engineering. Then I realized chemical engineering was a bit too abstract for me at that time. मैंने जब मास्टर्स किया था ना, तो मुझे उतना समझ में नहीं आता था। तो मैंने कहा कि फिर environmental engineering जो है, that is a natural sort of offshoot of what I am studying, and it was actually easier for me to understand. उससे मैं relate कर सका ज़्यादा। Hmm. तो जब मैंने वो सीखा, तो उसके बाद में पता चला कि हाँ, ये दिस इज वर्थ वाइल। और उसमें even starting the beginning of my career, I used to always believe and think
And it was obvious to me. Somehow, industry never really looked at it that way. If we do processes efficiently, we would generate less waste. So we would be environmentally more efficient. Guess what? If we are environmentally more efficient, or from process point of view more efficient, then we could actually make more money. So the environmental professional could design processes which would yield greater amounts of desired material, lesser amount of undesirable material, and even utilize the undesirable material or the byproduct as an input for the डाउनस्ट्रीम प्रोसेस. उसको कहते हैं सर्कुलर इकोनॉमी और सर्कुलैरिटी, राइट। इंडस्ट्रियल इकोलॉजी. तो उसमें क्या होता है कि जैसे एक इंडस्ट्री का वेस्ट जो होता है ना, वो दूसरे इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल करके हम लोग यूज कर सकते हैं. तो उस प्रकार से अगर हम लोग करेंगे तो फिर ऑन द इंडस्ट्रियल स्केल और इन द इंडस्ट्रियल फील्ड और स्पेस हम लोग एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं. सो दिस इज वन एस्पेक्ट ऑफ माई लाइफ, ऑफ माई प्रोफेशनल लाइफ. दूसरा जो है कि हमारा जो शरीर है उसको हमने अगर एफिशिएंटली चलाया, तो मेरा ऐसा अनुभव है, हर बहुत लोगों का अनुभव है कि वी गेट ए फिनोमिनल सेंस ऑफ हेल्थ एंड वेलबीइंग फ्रॉम विद इन विच इज इनडिस्क्राइबेबल. उसको हम बता नहीं सकते किसी को हमको कितना अच्छा लग रहा है. तो उस प्रकार से अगर हम लोग रह सकते हैं या रह पाएंगे, तो ये हमारे लिए अच्छा होगा. तो ये मैंने एट द पर्सनल लेवल भी सीखा. और इससे क्या होता है कि एट द सोसाइटल लेवल, इफ वी आर consuming less and producing more, if we are consuming less and wasting less, then as a society we are becoming more and more efficient. तो इस प्रकार का जो अवेयरनेस है, जो हमारे लिए भी उपयोगी है, हमारे लिए भी लाभदायक है, और समाज के लिए और पर्यावरण के लिए भी लाभदायक है, उस प्रकार से हम अगर नहीं रहेंगे तो फिर हमारे जैसे अभागे हम ही हैं. वी विल बी द मोस्ट अनफॉर्चुनेट amongst all, even after स्पीशी। understanding all these principles, if we don't implement them in our life. तो ये सब समझ के हम लोगों ने ये सत्व का कार्यक्रम शुरू किया. और हम लोग इसके बारे में लोगों को बताते हैं कि भाई देखो, इस प्रकार से अगर रहोगे तो अच्छे रहोगे. You will be well, your family will be well, people around you will be well, society will be well, and eventually all of us will be well. राइट। And not only just us, but also society and the environment. तो इसका सोशल एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट इज ऑल्सो पॉजिटिव, और हमारा हाँ, हेल्थ इम्पैक्ट इज ऑल्सो पॉजिटिव. देखो. जब हर ब्रेन इस एफिशिएंसी, नेचर एफिशिएंसी से अलाइंड होगा, हाँ, तो वो वैसे ही काम करेगा। बिल्कुल करेगा. प्लास्टिक पैदा ही नहीं होगा दुनिया में। बिल्कुल नहीं होगा. प्लास्टिक इज अ यूजफुल थिंग. आई एम नॉट सेइंग दैट प्लास्टिक इज नॉट यूजफुल. प्लास्टिक इज यूजफुल. उसको अगर हम लोग ठीक से उपयोग में ला सकते हैं, और फिर उसका जो डिस्पोजल है या फिर रीयूटिलाइजेशन है उसको अगर ठीक से कर सकते हैं, तो दैट विल बी अ गुड थिंग. राइट। देखो, हमारा जीवन जो है ना वो बदल चुका है. आवर लाइफ हैज चेंज्ड ड्रास्टिकली इन द लास्ट 200 years or so. If we make mistakes, then those mistakes will come back to haunt us. In fact, the problem I'm currently working on relates to what is called PFAS, or forever chemicals. PFAS means per or polyfluoroalkyl substances. These are very hard to biodegrade substances that are man-made. ये नेचर में नहीं बनते थे. नेचर में तो, एज आई सेड, until about 200 years ago, nothing in nature was not non-biodegradable. Everything would be biodegradable. Everything was biodegradable because it will be a part of life somewhere or the other. उसी प्रकार से होता था जीवन हमारा. पर अभी ये जो केमिकल्स या मटेरियल्स हम लोगों ने डिस्कवर किए, और they are useful in certain cases. So if we have a material that is completely inert, then that material can be utilized in a medical device, for example, and it will not impact the host.
तो उस प्रकार का मटेरियल अगर होता है तो उससे जीवन में लाभ हो सकता है या सुविधा भी हो सकती है। लेकिन अगर उसका कोई दुष्परिणाम होता है तो फिर, तो उसके जो दुष्परिणाम होते हैं ना, वो हमें जल्द समझ में नहीं आते। सो इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम फॉर अस टू रियलाइज the negative environmental impacts of many materials we have discovered and have been using in the last many years. तो उसके ऊपर अभी काम चल रहा है, ये प्रोफेशनल काम चल रहा है। और इसमें भी अगेन दिस होल थिंग इज कनेक्टेड विद गीता। ऐसा नहीं है कि कनेक्टेड नहीं है। तो गीता का एक जो प्रिंसिपल है जो मुझे अच्छा लगता है रिगार्डिंग डाइट एंड इवन एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, तो उसमें भगवान कहते हैं कि यज्ञ शिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुंजते ते त्वघम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। तो इसका अर्थ ये है कि हम लोगों ने पहले यज्ञ करना चाहिए, और उसमें से हमें जो प्राप्त होगा प्रसाद, उसी को हमने ग्रहण करना चाहिए। और अगर हम वैसा नहीं करते हैं, बिना यज्ञ किए अगर हम कुछ लेते हैं पर्यावरण से या प्रकृति से, तो हम पाप करते हैं। What this really means from an environmental perspective, or even from our own dietary perspective, is कि if we don't do something positive for the environment, if we don't contribute to the environment, and if we collect something from it, or if we extract something from it, then we are not doing the right thing. In our diet case, if we eat something or if we consume something without first doing some, I would say ideally some kind of service or seva, या हम कहेंगे कि हमारा जो कर्तव्य है वो, unless we fulfill our duties towards our body, towards our family, towards our society, towards the environment, and consume without having done that, then we are not doing the right thing. और एक प्रिंसिपल जो है गीता में, उसमें भगवान कहते हैं कि अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवा यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवा। अन्नात् भवन्ति भूतानि यानी ये सारे जो जीव हैं या भूत हैं, they are created out of anna. So food creates us, right? Us meaning our bodies basically. And जो food है that is पर्जन्याद अन्न संभवा, यानी पर्जन्य से यानी वृष्टि से होता है, बारिश जब होती है तब होता है अन्न, ठीक है। और पर्जन्य कब होगा? यज्ञात भवति पर्जन्य, जब यज्ञ होगा तब पर्जन्य होगा। सो अनलेस वी डू सम काइंड ऑफ यज्ञ, बारिश नहीं होगी। मतलब ये दिस इज एन एलेगरी, उसका मैं मीनिंग भी बताता हूँ। एंड यज्ञ कर्म समुद्भव, तो यज्ञ जो है सैक्रिफिशियल एक्शन और कर्म, दिस इज आवर प्राइमरी ड्यूटी। सो वी शुड ऑल बी एंगेज्ड इन सेल्फलेस सर्विस। दैट सेल्फलेस सर्विस विल बी द यज्ञ विच इज गोइंग टू क्रिएट वेल बीइंग। सुबत्ता कहते हैं उसको। साधन संपत्ति जो होती है ना, संसाधन जो होते हैं, उनको हमको अगर पैदा करना है तो उसके लिए तो कुछ पुरुषार्थ करना पड़ेगा ना। सो इफ वी engage in activity, that activity should be for the benefit of the entire society or entire ecosystem. उसके बाद में उससे जो उत्पन्न होगा वो सबको मिलेगा, ठीक है। तब जाकर के कुछ, अगर खेती करेंगे तो अन्न पैदा होगा, है ना। तो उसके लिए तो कुछ कर्म करना पड़ेगा ना। इफ आई एम द फार्मर, इफ आई डोंट डू माई पार्ट, कि जाकर के वो जो भूमि है, जमीन है, उसको जोतो, नो यू प्रिपेयर द ग्राउंड एंड देन प्लांट द सीड, वो तो मेरे को करना ही पड़ेगा ना। वो नहीं करूंगा तो फिर तो फसल होगी नहीं। पर उसके बाद भी इफ आई डू दैट होल थिंग फॉर द सोसाइटीज बेनिफिट, उसके बाद भी इट हैज टू रेन ऑल्सो। सो उसके ऊपर प्रकृति की कृपा भी तो होनी चाहिए, तब जाकर के फसल होगी।
और उसके बाद में सारी की सारी जो फसल होगी वो सबके लिए होगी। तो उसमें देखो, द वे नेचर ऑपरेट्स इज, यू प्लांट ओनली a little bit of seed, but nature will give you so much, isn't it? Where will you get such a return? In राइट। any business you cannot get this kind of return in any business, right? So if that is done properly, मुझे तो ऐसा लगता है कि that is the most sacred business in the world. उसको अगर करना है और सबको अगर हमको वो आता है या सिखाया जाता है, तो हम लोग सब खुशहाल रहेंगे हमेशा। और बाकी जो उसके आगे हम लोग करते हैं, दे ऑल दोज थिंग्स फॉल अंडर द डेफिनेशन ऑफ डिजायर। मतलब वो नहीं होने से भी चल सकता है, लेकिन खाना तो पड़ेगा अपने को रोज। सो इफ वी कैन फोकस अवर अटेंशन ऑन डूइंग द राइट थिंग टू गेट आवर 5 फंडामेंटल नीड्स फुलफिल्ड, उसमें से फिजिकल नीड्स में है फूड, फूड इंक्लूड्स वाटर and clothing, because unless we are living in the tropics, we will require some clothing. In the tropics we can afford to live only on some langoti and we'll still be okay. Then we have to have some shelter. Again, in the tropics you could probably live without a shelter, but in cold places where you live or where I live, you need to have a shelter. ये 3 राइट। फिजिकल नीड्स हो गए। बाद में एक जो हमारा इनर नीड होता है, दैट इज फॉर नॉलेज। तो हम सबको अवेलेबल होना चाहिए नॉलेज। तो आजकल तो आसान हो गया बिकॉज ऑफ इंटरनेट एंड ऑल दैट। और जो आखिरी है बात, वो है हेल्थ केयर। मतलब मेडिकल फैसिलिटीज हैव टू बी अवेलेबल। अगर हम लोग ठीक से रहेंगे तो ये मेडिकल रिक्वायरमेंट कम हो जाएंगे हमारे, या ज़ीरो हो जाएंगे। इफ़ वी लिव प्रॉपरली देन होपफुली दिस लास्ट रिक्वायरमेंट इज ज़ीरो। राइट। बाकी जो 4 है, उसमें से जो पहले 3 है ना, उनको हमने टू द एक्सटेंट दे आर नेसेसरी उतना ही करना है। ओके, सो दैट यू आर कंफर्टेबल। If you have a desire to have a Sheesh Mahal or a Raj Mahal, then that desire will have no end. But if you have a comfortable place to live and enough food to eat, as much as your body requires, that should be good enough. Education or information is available plentifully these days. करेक्ट। राइट। उसके आगे का जो है ना, कि मुझे ये करना है, वो करना है, मुझे ये बनना है, वो बनना है, उसमें अगर हम लोग फंसेंगे तो देर इज नो एंड टू इट, फिर हम दुखी होते रहेंगे। बट इफ वी कैन डू दैट, if we can continue to do our duty towards our body, towards our society, towards our family, towards the environment, we will all live very well. तो ये पहला लेसन है, बहुत फंडामेंटल लेसन है गीता का। तो ये हमने आज सीखा, इसके आगे और भी थोड़ा कुछ सीखेंगे जब समय होगा तो इसमें कुछ प्रश्न होंगे तो बताओ। बहुत सारे इसमें से थ्रेड्स निकल रहे हैं दादा। हाँ, तो आज इसको की फिर अभी हम कॉन्वर्सेशन। रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो इसको हम लोग सेव करेंगे। हाँ। इफ यू वांट टू pull out some points and you want to discuss them the next time, I'm happy to engage in this conversation again with you at यस। at our convenience। फिर हम लोग यस। बात करेंगे उसके बारे में, ठीक है? बिल्कुल। आज यस। के लिए फिर इतना बहुत हो गया, और हम लोग फिर मिलेंगे। हाँ, शुभ रात्रि वहाँ पर आपके लिए। थैंक यू सो शुभ मच दिन। फॉर थैंक यू सो मच फॉर engaging in this wonderful conversation. Enjoyed it very much. Thank you. It was a blessing, दादा। थैंक यू सो Okay, मच। bye bye.